Hi guys, welcome back to Binary Search. Today we have Harsh on Binary Search. Hi Harsh, welcome to my channel. Thank you so much. आज हम बेसिकली इसके स्टार्टअप के बारे में बात करने वाले हैं और भी बहुत सारी चीज़ें रिगार्डिंग कैंपस, क्लासरूम्स, कॉलेज एंड कोडिंग. So make sure to watch this episode till the end. Let's start. So Harsh, firstly to my audience, please introduce yourself. Hi everyone, myself Harsh Kashyap and I am the founder of Brocato. That's all. Yeah. So Harsh, you are currently studying, right? So firstly, tell me about your background of your education. कि क्या चल रहा है, कौन से courses चल रहे हैं? Okay, right now I am pursuing BTech in Computer Science and Engineering and I am in 4th semester right now. Okay, तो अभी second year चल रहा है, right? Right. And you have started your own e-commerce store. तो थोड़ा उसके बारे में मैं जानना चाहूँगा कि कैसे start किया और कैसा चल रहा है अभी? So basically I started this Brocato. I had a spirit to start this Brocato in my first year only, but due to some resources and exposure I couldn't start that startup. So basically I started Brocato from the last December, from the 1st of the December. And now basically Brocato is a unisex fashion brand that's delivering the premium quality of apparel in very affordable ranges, and we are delivering our products in the 60 minutes. तो इसका आइडिया कैसे आया? राइट, मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तुमने क्या कुछ ऐसा फील करा कि यार मुझे करना चाहिए, मैं इस सेगमेंट में ये कर सकता हूँ, कैसे? ओके, सो बेसिकली इफ आई हाउ आई स्टार्टेड माय जर्नी, इट्स लाइक कि बेसिकली Brocato जो है जैसा अभी कहा, so yeah, there is a lots of startup in this field already. There is a tons of clothing brand who are starting with, but what are the main USP of Brocato is that we are selling in only 3 color segment, that's black, grey and white and in shades. और इसमें हम basically we are also adding some skin tone features into our website कि मतलब ये कलर इस स्किन टोन फीचर के लिए जो है हमारा बेस्ट रहने वाला है. That's our main USP. So what are the gaps I found in the clothing market, that जो brand है, like if I talk about some good brands, they are selling their apparels in 2000, 3000, 5000 without any restriction on the money, and when their quality is not up to the mark. So in Brocato basically if you are going to purchase our apparel on 1400 and 1500, then it will be feel like that you are purchasing something from the worth of 5000 or 6000. ओके, सो लाइक करेंट जो भी मार्केट में भी सेगमेंट बने हुए ऑलरेडी, उनसे तुम कैसे डिफरेंशिएट कर रहे हो? पूरा मार्केट क्लटर्ड है इस सेगमेंट और लोग ऑलरेडी जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं एक्चुअली. सो हाउ यू आर डिफरेंशिएटिंग फ्रॉम देम? So first of all we are differentiating them with our product quality, and second thing, we are delivering in 60 minutes in Delhi NCR. Wherever you want to order you can. And third one, that we are a unisex. तो basically it's not like कि तुम मैन हो या फिर वुमेन हो तो उसी के लिए, तो बेसिकली यूनिसेक्स. अगर आपको कहीं पे भी मान लो 30 मिनट्स के अंदर या फिर 35 मिनट्स के अंदर कोई क्लोथ्स चाहिए, वो भी गुड क्वालिटी ऑफ क्लोथ्स. आई नो लॉट्स ऑफ क्लोथिंग स्टार्टअप्स आर डूइंग द सेम, बट दे आर नॉट सेलिंग द क्वालिटी. So in Brocato we are selling quality in the very affordable price that's make us differentiate from other competitors. Okay. Right now, what are your USPs, main products you are listing there? Right now, if you look at the Brocato.in, that you will find some winter articles only listed there with some bottom wear straight lower, and we had also listed some premium quality of hoodies and sweatshirt for the both man and woman. Okay. तुमने इस सेगमेंट को क्यों पकड़ा? लाइक वाई क्लोथिंग? हाँ, वाई क्लोथिंग नहीं, वाई क्लोथिंग में भी तुम ये स्पेसिफिक क्यों गए? जनरल क्यों नहीं गए कि हर चीज़ बेचते हैं, सिर्फ ये स्पेसिफिक क्यों गए? देखिए, बेच तो सभी रहे हैं, सभी सब कुछ बेच रहे हैं, तो उनका तो कुछ यूएसपी नहीं आ रहा. और ये मार्केट इतना ज़्यादा क्लटर्ड है कि इसमें कुछ यूएसपी ना करूँ, कुछ यूनिक ना करूँ, तो मैं कुछ वो मेरा जो ब्रांड है वो ऊपर नहीं जा रहा. एंड वाई आई चूज दिस क्लोथिंग दिस बिकॉज जब तक पॉपुलेशन बढ़ रही है, जब तक पॉपुलेशन है तब तक क्लोथिंग है. ठीक है, कोई आदमी कंज्यूमेबल ब्रांड्स कभी खत्म नहीं होने वाले. राइट, सही पकड़ा है. तो वही कंज्यूमर जो ब्रांड है वो कभी खत्म नहीं होने वाले. सो दैट्स व्हाई आई सेलेक्टेड दिस क्लोथ. So as of now, you are selling just on your website, no offline stores. Yeah, right now we are just on D2C, direct to customer.
only via your website people Yeah, can purchase. website, and you can purchase on our Instagram. Brocato.in Yeah, and on your Brocato.in. Instagram page. Yep. Yeah. And how you manage all these things like inventory, delivery, payment, customer and all. ये workflow कैसे चलता है मुझे So- explain करना e-commerce का like. So basically, right now we are having just a team of 5 or 6 people because we just started from the last December. So basically, suppose you are gonna to add something on our add to cart. So basically, there is a admin panel जो कि आपका डिलीवरी स्टेटस कर देगा कि इट्स पैक्ड और ऑर्डर प्लेस. कौन मैनेज करना है admin panel? बेसिक देयर इज अ टीम देयर इज अ पर्सन देयर हु आर मैनेजिंग एवरीथिंग. तो वो वहाँ पे वो मैनेज करता है. उसके बाद फटाक से भी हम जो वेयर हाउस है, हम ऑफिस भी अभी हमारा फिलहाल वहीं पे, तो हम वहीं से जो है डिलीवरी बॉय को देते हैं. वॉट एवर द एड्रेस है तो वो सेम डे अच्छा हो जाता है. एंड पेमेंट वी आर गेटिंग आवर पेमेंट फ्रॉम रेजर पे. और अभी जो है बेसिकली COD हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे, जस्ट ऑनलाइन रेजर पे. फर्स्टली पे देन डिलीवरी. हाँ, yep. और डिलीवरी विदिन Delivery within 16 minutes. ओके डिलीवरी विल बी विदिन 16 मिनट्स. 16 minutes, yeah. ओके Right now we are targeting just Greater Noida and Noida for the 16 minutes delivery. Yep. Okay, so you are doing well as of now. So what's the marketing stuff you are doing like? Right now we are basically we are having a certain campaign in our mind, and in next 15 to 20 days we are running a campaign that's called Be Our Brand Ambassador for a Day. So everyone can basically take a picture of him or her with our brand, and they can post it on Instagram because we have to. Tagging everyone. Yeah, we are tagging everyone because we have to spread the brand awareness too. That's one of the marketing stuffs we are looking for. And another one we are gonna do guerrilla marketing from next to 2 or 3 months. Okay, and also you guys doing some social media campaigns. I've seen in past. Yeah, and right now we are collaborating with some micro and nano influencers too. Okay, yeah. So अभी तक जो है स्टार्टअप में बहुत सारे खर्चे हो रखे होंगे, मुझे पता है. So as of now roughly कितना पैसा डाल दिया होगा तुमने? If I talk about, so roughly it's approx 1,80,000. Almost 2 लाख रुपए. हाँ, almost 2 lakhs. ओके, सो ये सारा बूटस्ट्रैप था, खुद का पैसा था या फिर किसी से फंडिंग, किसी ने ग्रांट दी कुछ? Completely bootstrap. सब चीज़ खुद का पैसा. ओके, सो अभी इसको मतलब अभी आगे क्या करना है, इसको आगे अभी प्लान्स क्या क्या हैं लाइक? Basically plans हैं. There is a big milestone I have to achieve in the next 5 or 6 months. So just to make a Brocato very fastest brand from India. And कि हम एटलीस्ट आने वाले 5 से 6 महीने में एटलीस्ट हम 50% ऑफ द क्लोथिंग मार्केट जो इंडिया का है उसको कैप्चर कर चुके हों. एंड हम कुछ एक सॉर्ट ऑफ रेवेन्यू है उसको हम हिट कर जाएं. हमारे कस्टमर हम और आर्टिकल्स लाएं अपने ब्रांड के लिए, और आर्टिकल्स लाएं. That's all. सो स्किल करने में ये सब तो पैसा चाहिए होगा, तो पैसा अभी खुद का ही डालोगे या कहीं इन्वेस्टर के पास गए, कहीं पिच किए कुछ? एज फॉर नाउ कि अभी तो सारा बूटस्ट्रैप है, बट जब तक मुझे फंडिंग और ग्रांट्स नहीं मिलते देन इवन यू नो कि वो स्टार्टअप ज़्यादा. तो इफ फॉर अ एक्सपेंड एंड फॉर द एक्सपोजर आई एम लुकिंग फॉर सम इन्वेस्टर्स. हैं कुछ इन्वेस्टर, बट अगेन देयर इज इन्वेस्टर्स. अभी तक कहीं पे पिच के आसपास कहीं भी? हाँ, आई पिच्ड इन शारदा लॉन्च पैन कॉल लॉन्च Preneur. Okay. Yeah, so I just get a good response from the investor that it will be a good. So just and now we are having some follow-up meetings. अच्छा, ये मुझे शारदा यूनिवर्सिटी का ये जो लॉन्च पैड है इसके बारे में बताओ कुछ, कैसा सीन है? ना, सो बेसिकली मैं गया था वहाँ पे. हाँ, शारदा यूनिवर्सिटी लॉन्च पैड में. सो बेसिकली वहाँ उनका 5 to 6 lakh का ग्रांट है for 3% stake in your company with lots of rules and regulation. I think that's completely non-manageable for any early stage founders because उसके पास already इतना सारा काम रहता है. और उसमें तो just for a 5 to 6 lakh के लिए कोई भी 3% stake कंपनी में देगा नहीं. So that's the thing they guys have to improve. Another thing they guys have to improve to give the exposure to students who are participating in any startup competition and pitch deck competition, and they must have to invite certain leaders to motivate the young entrepreneurs. यार शारदा यूनिवर्सिटी में देखो आइडिया सबके पास है, बच्चे बहुत टैलेंटेड है, मैंने भी देखा है, लेकिन कोई सपोर्ट रिसोर्सेज नहीं है. और तुमने भी अपना एक्सपीरियंस देखा. अच्छा, तो उन्हें क्या करना चाहिए यार? बेसिकली सबसे पहले होती है कि हर एक यूनिवर्सिटी का एक विज़न होता है. तो शारदा का वो है नहीं.
नहीं है पर उसको कैटर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमने जब यहाँ पे एडमिशन ली थी हमें बताया गया था कि शारदा का मिशन ये है, विजन हाँ, ये है, हर चीज़ हाँ, बताया हाँ। गया था। और वहाँ पे विजन में ये था कि शारदा यूनिवर्सिटी से हमें एंटरप्रेन्योर को वो करना है, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर प्रमोट करना है। सो तो बेसिकली इनको जो है व्हाट आई से कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक बहुत सारे अच्छे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को लाना चाहिए टू मोटिवेट द यंग एंटरप्रेन्योर्स। सेकंड थिंग दे हैव टू कंडक्ट सम ई सबमिट कॉम्पिटिशन्स, जो कि अगेन एक यंग स्टार्टअप फाउंडर्स को जो हेल्प करती है। उनको एक फंडिंग और ग्रांट्स के लिए एक प्रॉपर सेक्शन बनाना चाहिए कि जो अर्ली स्टेज फाउंडर्स के लिए विदाउट एनी रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शन, राइट। फोर्थ थिंग कि दे मस्ट इफ एनीवन इज इन स्टार्टअप, सो उनको बेसिकली उनको उसके एकेडमिक से फ्री कर देना चाहिए, बिकॉज दैट्स द थिंग। एंड इवन यू नो कि स्टार्टअप क्रिएट करने में इट्स टेक यू 100% टाइम। देयर शुड बी नॉट सो मच प्रेशर। हमें लाइक अटेंडेंस पे वहाँ पे कुछ मिलना चाहिए या फिर मार्क्स एग्जाम वगैरह पे कुछ मिलना चाहिए, हाँ। ऐसा कुछ, सो दैट वी कैन फोकस ऑल द स्टफ हियर। या एग्जैक्टली। सो या और मैंने देखा था तुमने कहीं पिच कर रहे थे, तो उसका एक्सपीरियंस कुछ बताओ, कैसा रहा पिचेस? हाँ, मैं लॉन्चप्रेन्योर में पिच कर रहा था। बेसिकली उसका बहुत ज़्यादा अमेजिंग था, क्योंकि मुझे पता नहीं था एक्चुअली वो पिच डेक कंपटीशन चल रहा है। सो बेसिकली मैं एक छोटा सा 2-3 घंटे, मतलब 1 घंटे का वर्कशॉप अटेंड करने आया था। देन आई केम टू नो अबाउट द लॉन्चप्रेन्योर पिच डेक, जो कि मेरे सामने हो रहा है। आई जस्ट हेड अप देयर एंड वहाँ के एक जो है असिस्टेंट, मैंने उनको बोला कि दिस इज दैट। देन दे देखी कि अभी सारे स्लॉट बुक हैं, बट यू नो आई डोंट लूज अपॉर्चुनिटीज़, yet you have to build the opportunities. So basically मैं उनके पास गया और फिर मैंने बोला कि I have to participate in this that, आप मुझे just at least 1 minute भी दो। तो बस उन्होंने they cooperated with me and उन्होंने दिया, then I pitched there। मतलब फिर पिच किया, उसका क्या सीन था, रिजल्ट वगैरह? बेसिकली मैंने दिया तो एक्चुअली वो it was a completely unplanned, तो स्टिल मैंने वहाँ जाके जो है सबको मतलब मैंने किया और उन्होंने मेरा नाम लिया, बट उस लेटर ऑन जस्ट आई गॉट अ कार्ड फ्रॉम ए इन्वेस्टर की कांटेक्ट करने के। बस कार्ड दिए, बाद में बात करते हैं। अच्छा, सपोज हर्ष यू आर डूइंग सो मच थिंग नाइसली, सो अभी सपोज किसी को सेम ऐसे कुछ ई कॉमर्स से स्टार्ट करना है, सो स्क्रैच से वो कैसे कर सकता है? लाइक तुमने कौन कौन से प्रॉब्लम फेस करी और कहाँ पे वो फेस कर सकता है बेसिकली? इफ़ आई टॉक अबाउट द प्रॉब्लम देन यू कैन फेस इन, सबसे बड़ा है तुम्हारा प्रोडक्ट। अगर तुम अपने खुद के पैसे से स्टार्ट कर रहे हो, देन तुम्हारे फर्स्ट प्रॉब्लम होगा आउटसोर्सिंग करना, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ डीलर जो कि मैन्युफैक्चरर हैं, जो कि तुमसे एक्सट्रीमली चार्ज कर सकते हैं सेम प्रोडक्ट के लिए। कोई है तुमसे कम भी चार्ज कर सकते, तो तुम्हें वहाँ पे जस्ट वेरीफाई करना है कि किससे तुम्हें माल उठाना है। तो फर्स्ट थिंग कि जब तक मैं प्रेफर करता हूँ कि इनसोर्स ही करो आफ्टर गेटिंग अ गुड अमाउंट ऑफ फंड्स, बट स्टिल तुम आउटसोर्स कर रहे हो तो तुम अफोर्डेबिलिटी देख के मैन्युफैक्चरर सेलेक्ट करो। सेकंड थिंग इज योर वेबसाइट, राइट। तुम व्हाट्स योर आइडिया बिहाइंड योर क्लोथिंग ब्रांड, इट शुड बी रिप्रेजेंट योर वेबसाइट। तो वो वेबसाइट एक अच्छे से जो कि है, जो मस्ट नीडेड है। एंड थर्ड थिंग इन फोकस ऑन the core thing to build any e-commerce brand is to focus on marketing, only marketing to bring people on, to bring people, because clothing is a very populated niche। हर एक दिन 1 से 2 क्लोथिंग स्टार्टअप स्टार्ट हो रहे हैं, राइट। तो उसमें तुम्हें वो करना, मार्केटिंग की जरूरत है। you have to outstand in that whole domain, yeah, and you must have anything, one USP भी चलेगा क्लोथिंग ब्रांड में। So Harsh, you are just a second year student, तो कैसे मैनेज होता है like running a startup, running an e-commerce store, and apparently manage your college life, assignments, relationship and all? Yeah. First of all, okay, leave. So first of all, if you are doing the startup, then fuck the college. Yeah. First, because कॉलेज सच में फक करो भाई, क्योंकि स्टार्टअप इस मस्ट नीडेड, क्योंकि स्टार्टअप में 100% टाइम लगता है, राइट। और इफ़ यू तुम सबसे स्टार्टअप में अच्छी बात होती है कि तुम्हें पहले से पता है क्या करना है। बट वी कैन नॉट कंप्लीटली एस्केप कॉलेज लाइफ, बिकॉज़ दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ एजुकेशनल। जस्ट द थिंग इज टू टेक अ एनओसी और मेक अ गुड कनेक्शन विद द प्रोफेसर और द असिस्टेंट। दैट्स अ गुड, या। And how you manage, like you do all this stuff, you last year got good grades, almost 8 more than 8 CGPA, I think. Yeah. So how? So basically, how many CGPA you are getting, it's completely again depend on how many fees you are paying. Oh. Yeah. Good point. Yeah. No, it's the services of private universities.
So if you are paying, is spending 12 lakhs on your education, Yeah. then you will automatically get 9.5 CGPA. Yes. Okay. So Ah. how I can manage? Literally, I'm asking because I'm also doing something, but when I focus on my things, my ideas, my startups, I completely forget about classroom assignment, practicals. So yeah, basically it's very common for every early stage founders. So what are the things you must have to do? Basically, you just be with your goal. You know, just कि मुझे यही करना है. Assessment, assignment, it's the thing you even deal करना है उससे. You Just can't. have to appear. Yeah, you just have to appear. You can't completely skip that things, right? So उसके लिए it's just like कि टाइम निकाला भाई, क्योंकि असेसमेंट और वो सब भी नहीं करेंगे तो ये द कॉलेज विल नॉट प्रोवाइड यू द मार्क्स एंड ग्रेड्स. मतलब ये नीडेड है, लेकिन स्टिल अगर तुम्हें रेसेस में टाइम मिल रहा है देन वर्क ऑन स्टार्टअप. तुम्हें कभी भी टाइम मिल रही है तो वर्क ऑन स्टार्टअप. दैट इज द थिंग आई विल से. Right. Yeah, definitely. Startup is like, it's give you privilege, it's teach you how to manage everything at once. But okay, it's the end part that your startup is get succeed or not. But that journey taught you a lots of things. You get a tons of experience जो कि एक MBA के डिग्री करने से भी नहीं होगी, because you are learning actually by doing. हाँ, you are learning by actually doing the things, right? If I talk about any field, so basically they guys are just PPT पे पढ़ा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो प्रैक्टिकल नहीं है, राइट? कोई भी मार्केटिंग का बंदा है MBA के बाद, MBA में जस्ट पढ़ा रहे हैं बिजनेस होता क्या है, राइट? और जो बिजनेस कर रहा है वो एक्चुअली वो बिजनेस जानते हैं कि वो कैसे कर रहा है. सो दैट इज द थिंग, राइट? इवन अदर थिंग, अर्ली फेज स्टार्टअप में जो है सबसे ज़्यादा जो आती है प्रॉब्लम वो है फंडिंग की. दैट बिकॉज विदाउट फंडिंग यू कांट ब्रेथ द थिंग. इसके लिए तुम मतलब कर नहीं सकते विदाउट फंडिंग. Startup died बिकॉज ऑफ फंडिंग. ठीक है, फंडिंग शुड हैव टू बी पिक. और ये है कि बहुत सारे स्टार्टअप फाउंडर को फंडिंग मिल भी जाती है, स्टिल यू मस्ट एज ए स्टार्टअप फाउंडर वन स्किल यू मस्ट हैव टू बी अवेयर ऑफ कि हाउ टू यूज योर मनी. इफ़ यू आर गेटिंग 5 लाख, देन तुम्हारा ड्रीम ये नहीं होना चाहिए कि 5 लाख में मुझे इतना स्पेंड करना है ना. तुम्हारा ये होना चाहिए भाई मेरे पास सिर्फ 5 लाख है, इस 5 को मैं 15 ले जाऊंगा तभी मैं कोई और फंडिंग उठाऊंगा. सो दैट्स द कोर थिंग व्हाट आई पर्सनली बिलीव. So at last, just tell one thing to our audience: if they want to start, what they should do from where they should start. First of all, you must have a courage to start a startup, and if anybody is starting from scratch, I will say just believe in yourself. You can be the next Zuckerberg, you can be the next Elon Musk. They all guys are same, right? Their work makes them different from all the normal ordinary peoples. So just you must have a good guts and a courage to start your startup. Yeah. Okay, Harsh, that's it. Thank you for coming on my podcast. Yeah, guys, that's it for today. I hope you learned a lot of things. If you want to ask anything, you feel free to comment below. And if you want to connect Harsh, I'll mention his LinkedIn in the description box. From there, you can connect to him. And that's it for this episode. I hope you enjoyed it. Bye bye. Take care. See you. ये क्वेश्चन दूसरा पूछ. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाहता अभी तो बढ़ नहीं देता. पूछिए तो बताऊंगा. राज सोमानी के तो पॉडकास्ट देखता हूँ साल बाद में कर देखता हूँ. राज सोमानी के पॉडकास्ट में विजय माल्या भी लाइक नहीं दूसरा